Assalamu alaikum, everyone. This is Adnan Azim from Greenwich University. Today we're going to be conducting our fifth session on social psychology. With us joining is Mr. Aftab Shah, Head of Psychology Department at Greenwich University. कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अदनान. Thank you for having me. How are you doing? Alhamdulillah, very good. सही है. So today's topic is going to be about social influence. But one of the important, obviously, ideas within social psychology is how we are influenced by people around us, and not just people, but also groups and also institutions, right? और हमें वो किस तरीके से influence करते हैं. So I want to talk to you about that, but before I do, I want to understand what you understand by the idea of social influence. I think I would say कि यहाँ पे social. I mean, think about norms. Think about people's expectations. Exactly. Yeah. In terms of social influence, I think यहाँ पे social influence is so deeply ingrained कि at times it's appalling and shocking. The level at which social influence is ingrained. You would see, and particularly the specific part that for me was really appalling was the fact that when someone's daughter comes of age, it's like we're going to get her married whether she wants to get married or not, and we are going to get her married where we want her to get married. जब जिससे हम चाह रहे हैं शादी करें उसी से शादी करेगी. And a huge part of that particular thinking, obviously there is this aspect of कि हर माँ बाप अपनी बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं. That aspect is definitely there. The other aspect to it is also कि लोग क्या बोलेंगे and whether or not this particular decision is going to be appealing for the masses or not. मेरे around जितने लोग उठते बैठते हैं, are they going to approve of my decision or they are going to go like कि तुमने क्या कहा? That's just one example of it. Just to add there, we were talking about in the last episode, you had said something about this norm as well, where the mother of the girl is looking for a certain kind of a spouse for her daughter, और उसके अंदर भी कुछ norms बने हुए हैं. And then I had also given you an example where a social norm could be antisocial. Right, it could be the norm of a society to break a law as well. ऐसा भी हो सकता है, certain social norms. तो हमारे यहाँ भी कुछ इस किस्म के norms बने हुए हैं that influence our behavior socially. If we talk about that also, like these social norms that we are talking about, they influence our attitudes, they change our behavior as well. So to give you a situation जिसके अंदर फॉर एग्जांपल लोग ये फिनोमेना देखते भी हैं, उन्होंने टिकटॉक्स पे वीडियोस भी देखी होंगी, तो दे आर गोइंग अक्रॉस अ ब्रिज एंड दे सी समवन लुकिंग डाउन फ्रॉम द ब्रिज एंड दे जस्ट कॉन्स्टेंटली लुकिंग. शुरुआत होगी एक इंसान से कि एक इंसान नीचे देख रहा है, उस इंसान को देख के दूसरा इंसान देखना शुरू कर देगा कि नीचे क्या हो रहा है, फिर तीसरा इंसान देखना शुरू कर देगा कि ये क्यों हो रहा है. एंड आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक इंफॉर्मेशनल और एन एजुकेशनल थिंग्स फ्रॉम द मीडिया एज वेल. फॉर एग्जांपल एक नॉर्म होता है कि लड़की जब शादी के लिए अपने आप को, जैसे कि शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड स्पाउस, तो फैमिली मेम्बर्स में वो ट्रे लेके आती है. दिस इज समथिंग व्हिच इज इनग्रेन्ड एज अ स्कीमा इन ऑल ऑफ आवर माइंड्स, दैट वी सी दिस वुमन पिकिंग अप अ ट्रे एंड कमिंग एंड गिविंग इट टू द गाइज फैमिली एंड एवरीवन. ये भी एक सोशल नॉर्म के तहत ही हमारे पास है. An idea again, हम जो डिस्कशन भी कर रहे हैं कि there are a lot of norms as well in Pakistani society जो कि बहुत ही बुरे हैं, right? But people conform to that standard. Otherwise अगर वो नहीं करेंगे तो people ridicule them. Like there is apprehension of ridicule, humiliation, of obviously being ostracized as well to an extent कि लोग उनको बिल्कुल isolate कर देंगे. One thing that I want to understand over here, particularly from a psychological perspective, is कि मुझे ऐसा लगता है कि a lot of times it's very easy for a person to adopt the behaviors and particularly beliefs of your society and your parents and everyone else when you do not believe in your own internal voice or intuition completely. There are a lot of times कि आपका पर्सनल नज़रिया बहुत मुख्तलिफ होगा सोसाइटी के नज़रिए से, बट मुझे लगता है कि इफ़ यू डू नॉट हैव
intuition, or if you do not believe in yourself कि मैं जो सोच रहा हूँ सही है, even though 99 people around me are like कि नहीं, we look at things this particular way, तो I think how much would you think your personal belief or conviction in your ideas is the key factor that makes the difference? Ke the lesser you have belief in your own ideas and in your own thoughts, the easier it would be for you to follow someone else's beliefs and thoughts and perceptions. I think here the key word would be how much have you internalized that norm. If you have internalized that norm, then you're going to conform deeply. So you are going to suspend your own values and beliefs, or you're going to put them aside. You're going to be like कि ये ग्रुप जो जिसकी मैंने values को beliefs को internalize किया है ये, and that happens perhaps. एक फैमिली की एग्जांपल ले लेते हैं ना कि एक फैमिली के अंदर जहेज़ लेना बहुत ही आम है लड़की वालों से. एक लड़का है, वो जनरेशन में आया, उसने कहा कि मैं नहीं लूँगा. अब एक सवाल मेरा ये है कि क्या ये एक इंसान पहले तो पब्लिकली अनकन्फर्म कर रहा है, या मतलब यानी लोगों को डिसएग्री कर रहा है अपनी फैमिली मेम्बर्स को कि ये चीज़ गलत है, या तो वो ये चीज़ नहीं कर रहा लेकिन दिल ही के अंदर वो कह रहा है कि ये गलत है, राइट? सो देयर आर टू डिस्टिंक्शंस हेयर एज वेल कि क्या इंसान मैं पब्लिकली कन्फर्म कर रहा हूँ और प्राइवेटली डिसएग्री कर रहा हूँ, या मैं दोनों तरफ कन्फर्म कर रहा हूँ कि मैंने इतने हद तक इंटरनलाइज कर लिया है कि जहेज़ लेना बिल्कुल ठीक है, या तो मैं बोल रहा हूँ जहेज़ लेना गलत है. तो यहाँ पर एक वैरी करता है. पीपल even then, because that person would want the validation from his mother, father and family members, तो वो शायद उनके सामने बोले जहेज़ लेना ठीक है, लेकिन जब दोस्तों के पास जा रहे हैं तो वो वहाँ कह रहा है कि जहेज़ लेना गलत है. Right? So we were talking about earlier about dissonance as well. So this is an example, right? कि आपको publicly कुछ और कह रहे हो और privately कुछ और कह रहे हो. I want to come back the idea of social influence. Sometimes it is used as a power strategy as well to influence. And again, why wouldn't anyone would want to influence the society and the people in general, right? अगर कि masses हैं कि मुझे उसको influence कैसे करना है, मैं क्यों ना उनको जो है ना अपने अपने हिसाब से चलाऊं, उनके attitudes, beliefs को change करूं, right? So it's a power tool as well. I'll give you one example. A friend of mine was recently sharing this information. He said आजकल norm बन चुका है कि मुल्क छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा, राइट? अब बाहर जाके कोई भी इंसान जाता है तो रेमिटेंसेस भेजता है, पैसा भेजता है. तो व्हाट इफ दिस इज अ पावर मूव कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, राइट? कि आई मीन व्हेन यू लुक एट द बजट एज वेल, फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास को सबसे ज़्यादा उन्होंने टैक्स किया, तो क्यों ना इसी क्लास को जो पढ़ी लिखी है, ब्लू कॉलर वाइट कॉलर, इनको बाहर भेजा जाए, ये बाहर चले जाएं, राइट? और ये एक नॉर्म भी बन जाए कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, और बाहर जैसे जाएंगे तो वहाँ से रेमिटेंसेस भेजेंगे. एंड अगेन इट कुड बी अगेन अ वे ऑफ चेंजिंग पीपल्स एटीट्यूड. There were a lot of people who never thought that they would leave their country. They would live in Pakistan no matter what. लेकिन अगेन कुछ लोग फिर ऐसा हुआ कि एक नॉर्म बन गया हमारे पास कि बाहर जाना है, एंड देन दैट नॉर्म बेसिकली ओवरटुक ईच एंड एवरीथिंग एंड चेंज्ड पीपल्स ओपिनियन अबाउट लिविंग अब्रॉड एज वेल, राइट? क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है. तो समटाइम्स इसी ही तरीके से और भी चीज़ें हो सकती हैं टू इन्फ्लुएंस पीपल, टू कंट्रोल देम वन वे और द अदर. मीडिया इज एन प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस. हाउ मीडिया कुड बी यूज्ड एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल इन्फ्लुएंस, कि आप लोगों के माइंड चेंज कर रहे हो, एटीट्यूड्स चेंज कर रहे हो, पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हो. अब मेरा एजेंडा बाय द एंड ऑफ इट हो सकता है कि मैं किस तरीके से उनका माइंड चेंज करना चाहता हूँ. व्हेन यू टॉक अबाउट रेडिकलाइजेशन एज वेल, उसके अंदर भी एक कंसर्टेड एफर्ट होता है कि किसी भी इंसान किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए कि वो वायलेंट टेंडेंसीज या एग्रेशन उसके अंदर पैदा हो जाए. और फॉर एग्जांपल, आई वांट पीपल टू लेट्स से बिकर एंड फाइट ओवर एथनिसिटीज, रेस, कलर, XYZ. तो ये सोशल इन्फ्लुएंस यहाँ से भी हमारे पास आता है, जैसे रेस बेटिंग हो गई, लैंग्वेज के ऊपर बेटिंग हो गई, और उसके अंदर व्हाट एम आई एक्सपोजिंग यू टू and what kind of a narrative I'm showing it to you, that's going to basically, जो हम influence की बात कर रहे हैं, तो वो जो मैं दिखाऊंगा आपको, आपका perception उसी चीज़ से बनेगा. I want to, since we are in that frame of reference, let's talk about two types of influence. एक हमारे पास normative influence है और एक हमारे पास informational influence है. What would be the normative influence? Normative influence is going to be all about you fitting in order to be liked and in order to conform.
And I think this is highly present in terms of when children are growing up. Even though if something is not said aloud, आपको पता होता है क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल है, किस चीज़ पे फॉर एग्जांपल पैसा खर्च करना ठीक है, किस चीज़ पे पैसा खर्च करना ठीक नहीं है, एंड how you need to behave, even though if no one has said the rules out loud to you. So in order for you to get approval of your parents or the people around you, your friends, your society, your teachers, you start acting and behaving in a certain way. अभी अभी हम जहेज वाली एग्जांपल बात कर रहे थे, राइट, दैट नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस इज गोइंग टू किक इन राइट देयर बिकॉज यू वुड वांट द वैलिडेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ योर पेरेंट्स. तो आप उनके साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे. So it influences you, right? This group is influencing you to behave in a certain way because of your internal need and intrinsic need to be liked, to be validated, to be accepted. The other part of this influence would be, जो second है वो है informational influence. The informational influence would be your desire to be right or your desire to be competent. पिछले एपिसोड्स के अंदर I don't remember which. Yeah, go on. One thing that I want to highlight over here, and I'm witnessing this especially these days, is that people are more concerned, at least I can say this from my generation, people are more concerned with looking right than being right. They want to make sure that they're looking the part, they're looking competent. Whether they're competent or not, they're not too concerned about that. Like, have they put in 5-10 years of mastering a particular skill where they feel that they can talk about a certain topic, as opposed to them they just want to look competent, they want to look appealing. Just to elaborate on the question further, I think there's also a huge part. एक part definitely ये है कि we all want to be right and we all want to be competent. The other huge part that I think is very common with our generation is, rather than actually going through all the facts and figures and coming to our own conviction of the fact that this is right, we are more concerned with looking right. It's almost like we're less concerned with being intelligent, we're more concerned with looking intelligent. That's true. So does that also play a lot of power? Because if that's the case, that can do a lot more harm than good. And in that case, because you're not really competent. Again, ये जो दो चीज़ें हैं ना, something that I've covered as I was saying in the last few episodes as well. These are two anchors that we have to hold on about human nature: your desire to be liked by other people and your desire to be right. Naturally, you're going to be influenced outside of yourself by these two needs. If you have them, you'd like to fulfill them, na, one way or the other. So what you're pointing out is कि इंसान इस need को fulfill तो कर रहा होता है, but they do it inappropriately. For example, कि 4-5 किताबें पढ़ ली, basic superficial information ले ली, and then appearing as an expert on the subject. This is something that you see in today's day and age through social media. Every other person has a platform. तो उनकी एक्सपर्टीज़ एक टॉपिक में होती नहीं है, बट दे टॉक अ लॉट अबाउट दोज इशूज़ एंड दोज थिंग्स, नॉट फ्रॉम देयर, लेट्स से अगर के आई एम नॉट सेइंग कि लेट्स से मेंटल हेल्थ के स्ट्रगल्स होते हैं, पीपल गो थ्रू मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स. एक इंसान डिप्रेशन में जा चुका है तो दैट पर्सन कैन एक्चुअली टेल यू व्हाट दोज सिम्टम्स आर जो उसने खुद महसूस किए हैं, एंड दे कैन ऑल्सो टॉक टू यू अबाउट सम रेमेडीज परहैप्स जो कि उन्होंने उनके लिए काम किए हैं. बट दिस पर्सन इज़ अवेयर कि वो चीज़ें उनके लिए काम की हो सकते किसी और के लिए काम नहीं किए. As opposed to an expert talking about depression, they are going to talk about literally the prevalence, comorbidity, के gender difference कितना है, इसके risk factors क्या हैं, तो वो एक अलग तरीके से आपको बताएगा. But when people are fulfilling this need and they want to appear competent as opposed to being competent, तो उसके अंदर होता ही है कि एक इनसिक्योरिटी भी पैदा हो जाती है एक इंसान की, क्योंकि उसको पता है उसने कितने किताबें पढ़ी हैं, उसने कितनी किताबें नहीं पढ़ी हैं. तो एक इम्पोस्टर सिंड्रोम भी आता है एंड उस इंसान के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. तो फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ए साइकोलॉजी स्टूडेंट्स ऑन अ सब्जेक्ट, आप मुझे कहेंगे कि आप गलत है, मैं बोलूँगा कि तो फिर आप मुझे बताएं कौन सी चीज़ है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेफरेंसेज एज वेल, बट आई वोंट टेक इट पर्सनली बिकॉज इट इज़ डिवॉइड ऑफ माई ओन पर्सनल ओपिनियन. अभी भी जो हम बातें कर रहे हैं, हमारा कोई ज़ाती मशवरा तो नहीं है. बिल्कुल ऐसा ही है. वी आर टॉकिंग एज एकेडमिशियंस कि आप स्टूडेंट हो, मैं स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का, मैं एक टीचर हूँ साइकोलॉजी का, हम चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारा अपनी कोई राय नहीं है इस Absolutely. एज अपोज टू समवन हु वांट्स टू अपीयर कॉम्पिटेंट, कि उसके अंदर एक होगा कि वो अपनी चीज़ें डाल देगा. यू गोइंग टू मेक मोर मिस्टेक्स राइट देयर.
So this is true. This need is there in people, and in order to fulfill it, they make a mistake. That happens with the other way around, with the need to be liked as well. Or we want to be liked by others, so we make the mistake of conforming to them. We also make the exactly. mistake of showing ourselves in a light that's more appealing than maybe what we originally are. And appearing as well, not just psychologically being competent and appearing right, but also physically as well. Like का मतलब ये भी तो है ना कि मुझे किसी की personality पसंद आ रही है और मुझे किसी की appearance भी पसंद आ रही है, तो people actually go about genuinely changing their appearance to be liked, जिसमें body image issues आ जाते हैं लोगों को, right, या body dysphoria हो जाता है उनको, body dysmorphia हो जाता है उनको, right. तो ये हमारे पास दो anchors हैं in order to understand influences, social influences. Your desire, इंसानी फितरत का, your desire to be liked by other people, and again your desire to be right. Right, Desire and to fit be in. liked, desire to be right. Now let's talk about two very important factors that come under social influence. The first is identification, and the second one is internalization. Now talking about, I think we have, पहले हम लोगों ने जब ग्रुप आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया था या सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के बारे में, तो वी वर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफिकेशन एज अ कॉन्सेप्ट. तो यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, दिस इज समथिंग विच इज इंट्रिंसिक अगेन टू ह्यूमन नेचर, दैट इफ यू सी अ ग्रुप यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई विद दिस ग्रुप, राइट. एंड यू विल ट्राई एंड सी के यू आर गोइंग टू डू अ प्लस माइनस इन योर माइंड कि कौन सी चीज़ मैच करती है ग्रुप के साथ, कौन सी चीज़ नहीं मैच करती. दिस हैपन्स विद इंडिविजुअल्स एज वेल व्हेन यू आर गेटिंग टू नो देम, राइट. तो इट हैपन्स एट अ ग्रुप लेवल एज वेल कि आप चेक कर रहे होते हो कि कौन कौन सी वैल्यूज़ एटीट्यूड्स मैच कर रहे हैं. ये जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है आपके अंदर, ये साथ साथ आपका बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस करता है. बिकॉज नाउ ये दो जो चीज़ मैंने बोली थी, दैट यू वांट टू बी लाइक्ड बाय दिस ग्रुप इफ यू आर आइडेंटिफाइंग विद इट, एंड यू ऑल्सो वांट टू बी राइट विद इन दिस ग्रुप बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइंग विद दिस ग्रुप. बिल्कुल तो ऐसा ही. अब आपको उस ग्रुप की अप्रिसिएशन चाहिए ही चाहिए, राइट. तो एक तो ये है कि ये मीडियम लेवल की कन्फॉर्मिटी आपको इसमें आती है. हो सकता है कि जैसे मैंने एक फैमिली की एग्जांपल दी आपको कि वो फैमिली के सामने, ग्रुप के सामने जो है ना, वो वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एग्री कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन अकेले में जाके कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं ग्रुप से आइडेंटिफाई नहीं कर. तो ये होता है आपके साथ, आप फैमिली से मिलते हो जुलते हो, आपको पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा कंफर्म कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल हर फैमिली की कुछ कुछ यूनिक नॉर्म्स भी होते हैं, एब्सोल्युटली, राइट. तो वो उस यूनिक नॉर्म में एग्जाम्पल देता हूँ कि हम वीकेंड पे बैठते हैं साथ में और ये कुछ चीज़ें करते हैं, एंड दैट यू आर गोइंग टू बी, अगर आप ना करेंगे ना कंफर्म, तो आपको ताने मिलेंगे, आपको रिडिक्यूल मिलेगा, तो आपको किसी न किसी तरीके से उसको कंफर्म करना पड़ता है. ये मीडियम लेवल पे कंफर्मिटी होती है. आप प्राइवेटली नहीं जाना चाहते, सही है, लेकिन आप पब्लिकली उनके सामने आप बोलते हो ठीक है जाना पड़ेगा, शादियों में जाना पड़ता है, शादियों में जाना पड़ता है. दैट इज़ ऑल्सो अ फोर्स्ड काइंड ऑफ अ कंफर्मिटी. इसी के अंदर आइडेंटिफाइंग विद अ ग्रुप के अलावा इंटरनलाइजिंग द वैल्यूज एटीट्यूड्स ऑफ वन बिलीफ सिस्टम ऑफ द ग्रुप. इसका मतलब है कि यू आर डीपली इन इट. अब आपको चेंज नहीं, you become part of the group, you are the group now. of the group, exactly, you are the group now. You are basically, अब पब्लिकली और प्राइवेटली दोनों के अंदर एक कंपैटिबिलिटी है, दैट यू आर सबकॉन्शियस में आ गया आपका, सबकॉन्शियस में आ गया आपकी. अब वो ग्रुप को किसी now ने you're going अटैक to किया think है, that way, तो आपको अटैक किया है किसी ने, ऐसे ही है. तो अब वो एक उसके अंदर इतनी कोहेसिवनेस ग्रुप के अंदर आ गई है. आई मीन लुक एट ए स्पोर्ट्स टीम. स्पोर्ट्स टीम के अंदर इंटरनलाइजेशन होती है. दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द सेम, एटलीस्ट होनी चाहिए, राइट. अब एज अ फैन जो है यू माइट आइडेंटिफाई विद दैट ग्रुप, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर एग्जांपल है, और एज अ टीम मेंबर ऑफ दैट टीम यू माइट स्टार्ट इंटरनलाइजिंग इट, कि आप बोलें कि ये टीम मेरी ही टीम है, मैं ही इस टीम का हिस्सा हूँ. ये टीम हारती है तो मेरा कुछ पर्सनली मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो शैटर होती हैं, राइट. तो इंटरनलाइजेशन हैपन्स एट अ वेरी डीप लेवल which allows you to conform, और इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरफ आप सेम पेज पे होते हो, राइट. एंड इट लीड्स टू एज व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज इंटरनलाइजेशन अगर होगी तो इट्स गोइंग टू लीड टू अ न्यू काइंड ऑफ अ बिहेवियर. जो भी वो ग्रुप आपको बोलेगा करने के लिए आपको करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू आर कन्फर्मिंग. I think आई मीन इधर आई वांट यू टू थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग. सो जैसे कुछ होते हैं ना, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, दे बिकम कल्ट्स, राइट. तो एडोल्फ हिटलर का जो एक था नाजी पार्टी का, दैट वाज बेसिकली अ कल्ट इन इटसेल्फ, जिसके अंदर इंटरनलाइजेशन हद पे थी. तो दैट कुड लीड टू अ न्यू बिहेवियर एज वेल. तो इफ पीपल नेवर सल्यूटेड इन अ सर्टेन वे,
just because Hitler was telling them to salute in this way or to think in that way, right? For example, anti-Semitism था उस वक्त, और लेकिन हो सकता है कि वो पब्लिक नहीं था, प्राइवेट था। पोलराइजेशन उस लेवल पे नहीं थी। अब वो उसने जब वो चीज़ें बोली हैं, उस ग्रुप का हिस्सा बने, यू आर आइडेंटिफाइंग विद इट, एंड द सेकंड स्टेज इज दैट यू आर इंटरनलाइजिंग इट नाउ। तो अब आपकी वो जो पब्लिकली आप पहले नहीं बोलते थे, सिर्फ प्राइवेटली बोलते थे, एंड देन यू हैव स्टार्टेड सेइंग दोज थिंग्स पब्लिकली एज वेल, और इंटरनलाइज आपने पूरे ग्रुप की वैल्यूज को, बिलीव्स को कर दिया है। नाउ यू आर लाइक श्योर शॉट अ फॉलोअर ऑफ हिटलर, लेट्स से। तो I want you to see how people, leaders who know about this, who know how to play with people's emotions and feelings, thereby elicit a response. And brands, media, they do it every day. They give you a news, उसके साथ वो emotions, feelings को attach करते हैं so that they can get an irrational response from you. Right? तो जितना आपके अंदर में emotions, feelings पैदा करूँगा, तो उतना ज़्यादा आप glued होगे स्क्रीन के ऊपर। ऐसा है। तो ये चीज़ लीडर्स भी करते हैं टू राइल अप देयर क्राउड, और मीडिया भी करती है टू देयर कंज्यूमर्स टू इन्फ्लुएंस देम, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंस बाय द एंड ऑफ इट। तो ये दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर्स। I think that's the reason news is so addictive, that people get so hooked on to news, that constant bombarded of new stimuli that's like, you know, today this wrong thing happened, today that wrong thing happened, and now it's like people who are living relatively comfortable lives are also like unki personal life zindagi bahut achhi hogi, but like even in the comfort of their home they'll be like yaar mulk ke halat bahut kharab hai. It's like maybe that is the case, but like aapke halat to achhe khase hain, so like why are you internalizing all of this? Exactly. Again, you pointed out something ना, वही वाली बात है कि उस इंसान की जिंदगी में बिल्कुल ठीक जा रहा है, but they are internalizing those emotions and those feelings that is being someone is bombarding them with. Exactly, right? And because you identify with that group, जब वो न्यूज़ में अगर आपको ये कह रहे हैं कि आम शहरी के साथ ये हो रहा है, तो you identify with that as an आम शहरी आप हो। तो अगर वो आपके बारे में कुछ कह रहा है और आप उससे आइडेंटिफाई कर रहे हो ग्रुप से, और उस ग्रुप को वैल्यू भी आप करते हो, तो देन इट्स गोइंग टू क्रिएट सम इमोशंस एंड फीलिंग्स। अगर कि आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल अलग होके देखें एज एन ऑब्जेक्टिव पर्सन, डिवॉइड ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज समथिंग दैट आई टेल पीपल एल्डरली एज वेल, to do not be overstimulated by news, because at your time there was just a newspaper, आप पढ़ते थे, उसको साइड पर रख देते थे, and there was just a visual there picture. wasn't even like colors and like that kind of visual तस्वीर है ना striking. सर, तस्वीर को देखो बैठ के, और एक ही तस्वीर चेंज तो नहीं हो रही। But what's happened in the past few years and the past decade or so, के people who are elderly now they have access to hundreds of news channels, और वो उनको देखते हैं, and then there is no boundary. द एसोसिएटेड इफेक्ट ऑफ इमोशन ये है कि मैंने न्यूज़ पे एक चीज़ देख ली, अब उसने मुझे इतना अफेक्ट किया है कि मेरा मूड ख़राब हो गया, और मैं अब लोगों से बात करूंगा उस बारे में, लोगों से बात करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू प्रोजेक्ट दैट ऑन माई जो मेरी जो जनरेशन है उसके ऊपर, कि बाहर नहीं निकलो ये हो रहा है, बाहर नहीं निकलो वो हो रहा है, न्यूज़ में ये हो रहा है, कराची में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। नो डाउट इट इज़ ट्रू टू एक्सटेंट के ट्रू है, बट हाउ इट इज़ अफेक्टिंग यू, समथिंग दैट हैज़न्ट हैपेंड, राइट? आप उसके बारे में बैठ के परेशान हो रहे हो, समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, एंड थिंक अबाउट इट ना, एंड दिस इज समथिंग ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दैट आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट, कि अगर दूर किसी जंगल में एक दरख्त गिरा है और आवाज़ नहीं आई, क्या वो दरख्त गिरा है वाकई में? Okay. मेरे लिए तो नहीं गिरा, मैंने तो सुना ही नहीं है। जब तक आप मुझे अदनान देख के मुझे आके नहीं बताएगा कि वहाँ पे एक दरख्त गिरा है, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि आप देखना चाहते हैं कि कितने दरख्त गिरे, और फिर आप कहते हैं कि हो देखो कितने दरख्त गिर गए, दैट इज़ लाइक सेल्फ इंड्यूसिंग वरी, राइट? As if there is not enough worry in your own life. I think there is this idea of being, having this idea of being aroused or having a certain level of optimal arousal level. So it's like if you're just sitting over there and it's peaceful, you're like, कुछ करते हैं, let's just find something to do. That's so true, right? That's very true. That stimulation, overstimulation की ज़रूरत हर इंसान को होती है। तो I suppose that's what the therapist again does, right, in psychology. When you identify something like this, कि इसकी need for arousal तो है, लेकिन ये
fulfill दूसरे तरीके से कर रहा है, then you tell them to exercise as well or do some physical activity or do anything. उसके अंदर भी like play video games as well, उसमें भी आपका physical arousal Exactly. बढ़ेगा. आप स्पोर्ट्स खेलें उसमें बढ़ेगा. देयर आर काउंटलेस एक्टिविटीज दैट यू कैन डू जिसके अंदर बढ़ेगा, बनस्बत के आप ये देखें कि कितना गलत चल रहा है, कितना, बिकॉज इट वुड हैव दैट अराउजल इफेक्ट. It also has an addictive element to it. Definitely. And we did talk about last, I think, episode के अंदर the tendency of human beings to overfixate on the worry part and the Overthinking. what is wrong, Rumination के बारे में बात. What is missing? या तो आप उसमें उसके अंदर थोड़ा तो एक एडिक्शन होता है ना, फाइंडिंग प्लेजर This pleasure and pain. सो लेट्स ब्रॉडली स्पीकिंग टॉक अबाउट 3 एरियाज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. किस 3 किस्म की इन्फ्लुएंस होते हैं जिससे सोसाइटी हमें इन्फ्लुएंस करती है या कोई पावर स्ट्रक्चर हमें इन्फ्लुएंस करता है. एक हो गया कंफर्मिटी, बट लेट्स जस्ट हम कंफर्मिटी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे. तो आई वांट टू टॉक टू यू अ लिटिल बिट अबाउट, जस्ट ब्रीफली, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस. कंप्लायंस से क्या समझ में आ रहा है व्हेन आई एम सेइंग सोशल इन्फ्लुएंस एंड social influence through compliance? I think compliance is that, I think the word would be sneaky form of conformity. Compliance is like where it's like it's unsaid, but you kind of know how to behave. You kind of know how you need to act in a certain setting. And nobody's asking you perhaps to be compliant, but you know you have to be compliant. I think, for example, if we're in a group setting, let's say we're at a wedding, we know what are certain topics that are okay to be discussed, and we know what are certain topics that we cannot discuss. I feel like, I think we are going back from conformity to compliance. How about, इसको compliance को सिर्फ ऐसे देखते हैं कि किसी ने request किया आपसे, right? Order नहीं दिया, obedience के अंदर order है, और compliance के अंदर request है. So, for example, the university is requesting you to wear certain clothes or to wear a lanyard or the ID card, और आप university में के अंदर आए. So that's a request. That's a formal request. This is compliance, and which would require compliance, right? और university और सारी चीज़ें यही कहती हैं कि आपको compliance होती है. जब order होगा, that an authority figure आपको order दे रहा है, तो compliance mostly is happening between 2 people who are working together. okay. यूनिवर्सिटी के साथ आप काम कर रहे होते हैं ना, एज अ सर्विस प्रोवाइडर यूनिवर्सिटी आपको एजुकेशन दे रही है, तो उसके अंदर एक इक्वल लेवल होता है जिसके अंदर कंप्लायंस मांगी जाती है. सही है, राइट. इवन टू एन एक्सटेंट के आपको जब किसी का जगह पर काम कर रहे होते हैं तो उसकी कुछ पॉलिसी होती है उस जगह की, तो वो आपको कहती हैं कि हमारी पॉलिसी से कंप्लाई करें आप, राइट. उसके साथ साथ जो ओबीडियंस का पार्ट आता है, that is like an order that is being given to you and you do not have a choice. Compliance के अंदर there is definitely a choice. You can either comply, or if you don't want to comply to the request, it's up to you. But as far as obedience is concerned, you do not have a choice. तो social influence, जिस तरीके से सोसाइटी हमें इन्फ्लुएंस करती है, पावर स्ट्रक्चर्स करते हैं, तो एक तो हमें अथॉरिटी या ओबीडियंस के तौर पे कर सकती है कि कानून बना दें और बोलें कि इस तरह बिहेव करो, ये करो, वो करो, ये नहीं करो. Right, it could come from our parents as well, authority figures जो पहले थे. So it would almost always come from an authority figure. And फिर then you are like taking an order. So it is a relationship between a subordinate and a supervisor. Higher authority होगा, वो चाहे कोई भी हो सकता है. सही है. State हो सकती है, manager हो सकता है, या for example आपके parents हो सकते हैं. On the other hand, compliance on a equal footing पे होगी आपकी. ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके जो जिनके साथ आप काम कर रहे हो वो लोग हो सकते हैं. तो देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन द टू. बट लेट्स गो बैक टू कंफर्मिटी वाला पार्ट विच यू वर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल, राइट, के अनसेड थिंग्स कि जिस पे आपने कंफर्म करना ही करना है, नॉर्म्स बने हुए हैं हमारे पास. आई थिंक इफ आई वुड से कि द वे कंप्लायंस एंड कंफर्मिटी कॉन्ट्रास्ट विद ईच अदर इज दैट in every social interaction which it plays out in the most prominent manner, is ki in every social interaction there is a certain level of compliance even in friendship. Your friend expects you to, at least if you're showing up for a meetup, to show up on a certain time that's tolerable, to behave in a certain way, to act in a certain way, so on and so forth. So I think that element of compliance, that unsaid element of compliance, is always there in every interaction. If it's your significant other, you know that you have to be compliant
within certain protocols in order for there to be harmony. With obedience, it's like you don't have a choice. You have to comply, otherwise there's punishment and there's severe consequences. I mean, definitely both of those do overlap. For example, there might be a norm to conform, to stand in a line, and there may also be an explicit request to comply to that norm. तो that's दोनों में चीज़ों में बिल्कुल there is an overlap, दोनों एक दूसरे को complement भी और contrast भी करते हैं. Conformity का जो आसान तरीके से मैंने भी अभी definition भी आपको दी थी, वो यही थी कि थिंक अबाउट कि एक इंसान जा रहा है, उसने देखा है ब्रिज के नीचे क्या है, एक इंसान ने देखा, दूसरे ने उसको देख के देखा, तीसरे ने उसको देख के देखा. तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस कन्फॉर्मिटी के अंदर, कि एक बच्चे ने एक गलत जवाब दिया है हाथ उठा के, दूसरे बच्चे ने उसका जवाब सुन के हाथ उठा के बोला कि वही जवाब दिया, दो ने देखा, उन तीसरे ने देखा कि अच्छा उससे पूछा, उसने भी गलत जवाब दिया. तो ये फिनोमेना क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा होता भी है कि एक स्टूडेंट गलत जवाब देता है, दूसरा उसको देख के गलत देता है. सो देयर इज़ लाइक अ लाइन. उसी तरीके से अगर कहीं लाइन लगी होती है तो लोग अचानक से लाइन में जाके खुद ही खड़े हो जाते हैं. दैट इज़ ऑल्सो I कन्फॉर्मिटी. think this is most common at airports. Like when you don't know what to do, you're like, अच्छा सब यहाँ जा रहे हैं तो तुम उधर हो ही सकता है गेट यहाँ पे होगा. एग्जैक्टली, ग्रेट एग्जाम्पल देयर. सोलोमन ऐश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उस एक्सपेरिमेंट में उसने यही चेक करने की कोशिश की कि लोग कंफर्म कैसे करते हैं स्टैंडर्ड और नॉर्म से. तो उसने एक क्लासरूम सेटिंग के अंदर समझें कि 7 लोग बिठा दिए, 7 या 8 लोग बिठा दिए, और उसके अंदर उसने क्या किया कि एक इंसान था जिसके ऊपर रिसर्च हो रही थी, बाकी 6 के 6 मिले हुए थे रिसर्चर के साथ. और रिसर्चर ने उनको बोला था कि मैं एक सवाल पूछूंगा बहुत ही ईजी सा, आपने देना है गलत जवाब उसका. सही है. ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ प्रेशर आप सबका, पीयर प्रेशर उस एक इंसान के ऊपर कितना पड़ रहा सही है, है. जिसमें हम कहते हैं ना कि संगत से असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. ये एक एक्सपेरिमेंट है उसी को लेके. तो हुआ ये कि उसने उसको उनको बोला, जो 6 लोग मिले हुए थे, कि पहले मैं 5 जब ट्रायल सवाल पूछूं, जब 5 उसमें आपने सही जवाब देना है. सही है. ठीक है, पहले सही जवाब देना. सही है. और अचानक से जब मैंने सवाल पूछना शुरू कर दूं 5वें के बाद, जो है ना, झूठ बोलना शुरू कर देना, गलत जवाब देना. सही है. तो हुआ ये कि 5 जब उसने सवाल पूछे, सबने सही जवाब दिए, तो जो साथ में जो जिसके ऊपर रिसर्च हो रही थी उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं भी वही जवाब देता हूँ. तो लाइन से जा रहा था और उसको कहीं पे बिठाया हुआ था 5th और 6th पे. तो पहले से पूछते थे, सेकंड से पूछते थे, थर्ड से, फिर जब पार्टिसिपेंट की बारी आती थी वो फिर जवाब देता था. 5th और 6th पोजीशन में बिठाया हुआ था उसको एंड में. और जब 5वां सवाल, जब 5 सवाल हो गए, जब उसके बाद गलत जवाब होना शुरू हो गए, कि जब पहले से पूछा उसने गलत दिया, दूसरे ने, तीसरे ने, तो उसको जवाब सही पता था. सही है. उसने यूं करके बार बार उसने देखा कि अब मैं गलत हूँ या ये सारे गलत हैं. सही है. और विच समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड देयर, इसके उसने दूसरों का जब जवाब गलत सुना, सही है, उसने कहा कि हो सकता है, उसने अपने आप को गैसलाइट कर दिया. उसने कहा हो सकता है मैं ही गलत हूँ. सही है. ठीक है, और उसने गलत जवाब दे दिया. उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसने अलग जाके उससे पूछा, हर पार्टिसिपेंट के साथ उन्होंने पूछा कि तुमने कंफर्म क्यों किया, क्या तुम्हें वाकई में सही जवाब पता था. उसने कहा मुझे बिल्कुल सही जवाब पता था. तो काफ़ी उन्हें वेरियस रीजंस बताए. उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे गलत हों और मैं सही हूँ. किसी ने बोला कि मुझे पता था कि ये सारे गलत हैं और मैं सही हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा थे, बुरा मान जाते. सही है. ठीक है, तो मुझे अजीब लग रहा था कि मैं अकेला सबके सामने. तो इसमें कॉन्फिडेंस भी वाली चीज़ आ जाती है, सेल्फ इस्टीम भी आपकी आ जाती है. कुछ लोग तबीयतन दे डोंट लाइक कॉन्फ्लिक्ट. 6 लोगों के सामने अगर 6 लोग कह रहे हैं चलो चलते हैं पिज्ज़ा खाने, सही है, तो एक बंदा अगर के 7वां होगा ना, वो बोलेगा चलो बर्गर खाए, वो बोलेगा यार अब सारे बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा. आई डोंट वांट टू बी द ऑड वन आउट. सही है. और उसके बाद लोग भी नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे कि, तो सम पीपल डोंट लाइक. और कुछ डिसएग्रीबल लोग होते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, राइट. तो वो कहते हैं कि नहीं, अड़ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये है तो है, वो फर्क ही उनको नहीं पड़ता. सो इट इज़ लुक्ड एट एज अ पॉजिटिव ट्रेट एज वेल, कि एक इंसान उसके साथ डी इंडिविजुएशन नहीं हो रही, यानी कि वो ग्रुप का हिस्सा नहीं बन रहा. सही है, राइट. and he's comfortable with that, and he's comfortable with that. He's comfortable with basically disagreement and being an outsider, right. तो एक ये बहुत ही important चीज़ हमारे साथ होती है. And again I want to talk about the other part of this as well, जो autokinetic phenomena है. Explain that
to the viewers Sure. what an autokinetic phenomena या optical illusion is, and then we will talk about, because that's also related to conformity. ठीक है. Autokinetic phenomenon is basically कि I mean the scientific experiment was basically कि in a dark room a light was shown on the wall, and when asked the individual who's looking at that light कि how far away it is, by their own estimate they would go like, you know, maybe it's 7 feet, maybe it's 8 feet away. However, when there were other people with them, they were like, नहीं यार 12 फुट है, and there are like 5-6 people going like, यार नहीं यार 12 फुट दूर है. So the person will be like, हाँ यार 12 फुट दूर है, or maybe the other 5-6 people in the group could go like, यार ये लाइट नोटिस करो हल्की सी हिल रही है, even though that light might not be moving, because 6 people are saying कि this light is moving, you could go like, हाँ this light may be moving. And the key critical factor over here is that you yourself are not sure, and because you are not sure, your group can decide something, and because your group seems to be sure up in this particular manner, you can go like, this sounds about right. Basically informational influence, your desire to be right and information, क्योंकि आपको नहीं पता तो you're relying on that information influence by other people. Exactly. Right? I think one other simpler example of this would be trying to interpret abstract art. आप abstract art को देख रहे हो, it's not making any sense to you, like ये पता नहीं क्या चीज़ है, and there are 5 other people who are like, यार ये ऐसा है, यार ये वैसा है, this is what the artist was trying to say. You're like, ऐसा ही होगा. Definitely. And again, because you don't have an opinion on it, Exactly. so the direct information that has been given to you, and you want to be obviously right, so this influence is affecting you in a manner कि आप बोल रहे हो हाँ यही सही है, and then that is changing and it's influencing you essentially. Exactly. So the autokinetic optical illusion यही होता है कि एक अगर के डार्क रूम में किसी को एक लाइट दिखाई जाए तो that light would seem to be moving. It wouldn't seem to be stationary. It would seem to be moving here and there. अब ये illusion जो optical illusion होता है इंसान के साथ, one of the social psychologists, a Turkish social psychologist, very nice experiment, उसने क्या किया कि इस optical illusion को लेके उसने conformity को explain किया कि informational influence कैसे होता है. उसने क्या किया कि एक बंदे को अकेले रखा है उसी सिचुएशन के अंदर, उसको बोला लाइट का डिस्टेंस क्या है, उसने बोला कि 7-8 फुट डिस्टेंस है मेरा और लाइट के दरमियान. सही है. ऑप्टिकल इल्यूजन है, अगेन पता नहीं चल रहा, अंदाज़ा लगाया उसने. फिर उसने क्या किया कि ग्रुप को डाल दिया, बोला कि ऑब्जर्व करो, आप बताओ सारे. तो दूसरा एस्टिमेट आया ग्रुप का मिल के कलेक्टिवली उन्होंने एक ही बताना था, वो आया 12 to 13, उन्होंने बोला 13 फीट का फासला है लाइट से और मेरा. फिर उस सबको अलग अलग किया दोबारा से. तो पहले उसने 7 बताया, ग्रुप के साथ उसने 12 बताया या 13 बताया, अब फिर दोबारा उसे अकेले में पूछा है. सही है. अब बताओ एस्टिमेशन कितनी है. सही है. तो उसने दोबारा उन्होंने बोला तो उसने 7 से उसने 8 कर दिया, 9 कर दिया, 10, मतलब वो उससे आगे के ग्रुप के करीब चला गया उनका एस्टिमेशन. ग्रुप का 12 या 13 था तो उनका 10 या 11 चला गया एस्टिमेशन. सो द आइडिया इज कि जब आपको एक इन्फॉर्मेशन के आइडिया नहीं होता, पता नहीं होता, तो यू आर रिलाइंग ऑन इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, यू आर रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल क्यूज फ्रॉम द ग्रुप दैट यू आर आइडेंटिफाइंग विद. और इससे अगर इसी इंसान ने इंटरनलाइज किया होता ना, मैं अगर फैमिली को साथ में रख देता तो अब्बा बोलता कि बेटा मैंने कहा है 13 फुट है तो 13 फुट ही है. तो अगर के इंटरनलाइजेशन है इस ग्रुप के साथ, वो आइडेंटिफिकेशन थी उनकी, तो उसने उतना ही अफेक्ट किया जितना कर सकता था. सही है. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हाउ अदर पीपल अफेक्ट यू. एंड इसी के अंदर आई वॉन्ट टू ऑल्सो टेल यू कि सोशल कन्फॉर्मिटी वर्क्स लाइक दिस इन एवरी कैपेसिटी वेयर पीपल आर ब्रेन वॉश्ड, दे फॉरगेट देयर ओन सेल्फ. ये जो हम ग्रुप थिंक की बात करते हैं या एक मॉब की बात करते हैं कि एक मेंटालिटी सेम है और सारे लोग उसी से ही कन्फॉर्म कर रहे हैं, यानी एक इंसान गुस्से में, दूसरा इंसान उसी गुस्से को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर वो मतलब पागल हो गए हैं सारे. लाइक देयर पंपिंग ईच अदर एज वेल, राइट. एक इंसान चिल्ला रहा है और मैं उसके इमोशंस को देख रहा हूँ, मेरा हाइटेंड अराउजल हो गया, फिर मैं भी उसको जो है ना रिपीट कर रहा हूँ. एंड वी आर ऑल कन्फॉर्मिंग, एंड वी आर कन्फॉर्मिंग टू एंगर, एंड वी आर कन्फॉर्मिंग टू मिस इन्फॉर्मेशन. नो वन इज आस्किंग के, और वो क्यों? क्योंकि अगेन normative influence, you want to be liked, you want to be right, and again that group is something that you identify with. ये हमारे पास जो radicalization का process हो रहा है ना, वो conformity के through ही हो रहा है. आपके साथ गलत हो रहा है, everyone is a victim. everyone is a victim, और चिल्ला रहे हैं, एक चिल्ला रहा है, दूसरा चिल्ला रहा है, तीसरा चिल्ला रहा है, सारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं.
which is something which is just exacerbating the problem. So up till now, I guess let's move towards the closing side of this episode. So एक चीज़ तो जो हमने डिस्कस की है, that is something which is so inevitable as well, that is social influence. होगा ही होगा. You are likely to be influenced by other people, by institutions. वो इस वजह से होगा because of normative and information influence, because it is fulfilling some inherent desires and values of human being, their value to be liked, their value to belong, their value to be right, competent, to understand the world they're living in. तो influence हमेशा हम होंगे ही होंगे. So what we are saying is that those 3 areas of influence, then you are more than likely to be obedient. आप obey करेंगे आपके अंदर है. किसको obey करेंगे फिर सवाल पैदा होता है. Comply भी करेंगे फिर किस किस्म की request को comply कर रहे हैं. And then finally you are going to conform to a certain norm, whether it is written, whether it's non-verbal, आप उसको भी conform करेंगे. हम हमारे अंदर ये tendencies हैं. Then automatically the question is कि मैं किस चीज़ को से conform हो रहा हूँ, यानी कि I am conforming because I am identifying with a certain group, right? I am complying or I am listening to authority because मेरे वो benefit के अंदर ही है. Because again वो ग्रुप मेरी वैल्यूज़ को, मेरे बिलीव्स को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करता है, तभी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या मान रहा हूँ. इसीलिए मैं उसको अपने आप को इन्फ्लुएंस होने देता हूँ. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट अ पर्सन हैज़ टू आस्क देमसेल्व्स इज़ वेरी, जो अगर ये चीज़ होनी ही है तो मैं किन चीज़ों से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, एंड कन्फॉर्मिटी उसको डिसाइड करेगी. तो लेट्स से दैट एक ऐसी चीज़ हो रही है मेरे सामने जो फंडामेंटली, गोइंग बैक टू दैट लड़के वाली एग्जांपल और जहेज़ वाली एग्जांपल, कि एक लड़की ट्रे लेके जा रही है और एक लड़का अगर जहेज़ मांग रहा है, क्या मैं इस ग्रुप से आइडेंटिफाई करता हूँ, यानी मेरी फैमिली की ये वैल्यू है, क्या मैं इस एस्पेक्ट से इनसे आइडेंटिफाई करता हूँ, नहीं करता, क्या ये मेरे एटीट्यूड फॉर्मेशन का हिस्सा है या नहीं है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा वेदर कंफॉर्मिटी आप कर रहे हो, वेदर यू आर बीइंग ओबीडियंट, वेदर यू आर कंप्लाइंग और नॉट. जो इंसान के मंतक को बात नहीं मानती ना, या उसकी वैल्यूज़ या उसके बिलीव्स को मानती नहीं है वो चीज़, जहाँ डिसोनेंस पैदा हो रही है, तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि स्टैंड ले, और वहाँ पर या तो उस ग्रुप से दूर हो जाए, उस मामलात के अंदर अपनी जो है वर्बली कहे, या खामोश होकर उधर से चला जाए. ये वाली सिचुएशन ना कि मैं अंदर जो है ये, विच इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कि मैं अंदर से जो है मना कर रहा हूँ, लेकिन वाज़े तौर पे बाहर लोगों को कह रहा हूँ हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं. दैट इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर ह्यूमन वेल बीइंग. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अ पर्सन नीड टू आस्क देमसेल्व्स कंसिस्टेंटली कि वो कौन से ग्रुप से कौन सी जगहों पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ इट, अगेन इट इज़ समथिंग सो ह्यूमन, जो कि लोगों फिर वो पर्सनैलिटी टाइप भी आ जाता है कि कुछ लोगों को कॉन्फ्लिक्ट ही पसंद नहीं है, कुछ लोग बोलते भी नहीं है, कुछ लोग हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, कुछ लोग परफेक्ट होना चाहते हैं, राइट, हमेशा हर रिश्ते के अंदर. दैट इज़ इम्पॉसिबल. तो कुछ चीज़ें जो होती हैं आपकी अपनी अंदर भी हैं कि आप इस ग्रुप से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, लेकिन तब भी आप कंप्लाई कर रहे हो या ओबीडियंट बन रहे हो या कंफर्म कर रहे हो. आपको पूछना पड़ेगा अपने आप को, और पूछे और जवाब मिला है तो देन यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड. एंड दैट स्टैंड, if it is impossible because the other person is violent, this group is violent, तो खामोश होके चले जाएं वहाँ से. लेकिन अगर के violent नहीं है, then overcome your own personality deficit, कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, आप conflict को avoid नहीं कर सकते relationships में, आपको अपने attitude values को voice out करना पड़ेगा, right? And that's very very important, right? So that's my 2 cents. So I would say कि whenever you, for example, whenever you conform, you lose a part of yourself. And if you conform for long enough of a time, you lose your entire self, and the person that's existing is just a byproduct of circumstances in society. आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी values, अपने beliefs, you start letting them go in order to fit in order to be accepted, in order to not be ridiculed, in order to not be humiliated. Maybe that starts at the age of 13. You stretch it to the age of 30,
आपकी अपनी personal values, personal beliefs, your ability to think and evaluate all dissipates, and all of your decision making stems from, will I fit in, is it socially approved, will I be accepted, will I be loved, and that's about it, and that becomes your entire life. So I think, at whichever stage you are in life, one should take into account and decide what are their own values, what do they genuinely believe is right, and then sum up the courage to exercise that and to practice that, because I think that would give you the agency to rebuild your original self and your character. Warna aista aista, like as you start conforming, and particularly as you start getting older, you are more obliged to conform in every social setting. And if you keep doing that for 5-10 years, by the end of it, you would just lose yourself completely. And then people at a certain age don't feel like they trust themselves. And फिर उन लोगों को होता है कि where does all of their decision making and judgment stem from? And they're always confused and in conflict with each other, because deep down somewhere within you, you know the truth. But if you have not exercised or vocalized the truth for the next 20-25 years, so it's impossible for you to get that power back. That's the only thing that I would say. Outro. Yes. Outro. To sum this up. Yeah. Basically, whether it comes to normative influence, whether it comes to informational influence, before, like, when stimulus occurs, one needs to take a moment and reflect that my desire to be liked, my desire to fit in, my desire to be competent needs to be fulfilled in a way that is right by me and that is right by society. So do right by yourself, do right by others, but make sure that you're doing right by yourself. Don't get so lost you're doing right by others and not yourself. All right, thank you so much for joining us. This was a really productive session. In our next session, we're going to be discussing compliance and obedience and how exactly does that factor in our day-to-day interaction. So stay tuned, and I'll see you all next week. Thank you.